चलिए स्टार्ट ले लेते हैं, बाकी लग जो आए तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss chi-square test, assumptions of chi-square test, characteristic of chi-square test, when to apply chi-square test, what are the variables on which chi-square test is applied. So we will be discussing these objectives one by one, right? So formula Yes, for the sir. chi-square test is chi-square is equal to sigma O minus E. O mean observed frequency, E mean expected frequency whole square divided by E. ये सिग्मा E पे भी है, इन पे भी है। ये chi square टेस्ट का फॉर्मूला है। अब O का मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो आपको 2/2 टेबल में नजर आ रहे हैं, वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। E माना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड, इसको फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड Frequency. frequency. Sigma means sum, and this is a symbol. Chi square. This is not x square. This is chi square. ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। जी सर। अब इसको हम अप्लाई कब करते हैं? जब हम एसोसिएशन देखते हैं बिटवीन टू कैटेगोरिकल नॉमिनल वेरिएबल, तो हम chi square टेस्ट अप्लाई करते हैं कि आया इन दो वेरिएबल के दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जी सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है सिगरेट स्मोकिंग है और लंग कैंसर है। लंग कैंसर पॉजिटिव, लंग कैंसर नेगेटिव, और सिगरेट स्मोकिंग यस और नो। जो सिगरेट पीते हैं तो उनको डिजीज डेवलप होती है कि नहीं होती है, और जो नहीं पीते उनको डेवलप नहीं होती, कि क्या होता है, होती है कि नहीं होती। तो अगर जी अच्छा जी, तो ये फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग chi square test. When we apply chi square test, when there are two variables, both the variables are categorical, they are nominal, and we want to see an association between these two variables, whether these are associated or these are not associated. For that we apply chi square test. So after the calculation, we compare the tabulated value with the calculated value, the test statistic with the tabulated value, and at the end, if the calculated value is more than the tabulated value and falls in the rejection region, so we will reject the null hypothesis and we will accept the alternate hypothesis, and we will say the two variables are dependent on each other. Means there is an association between the two categorical variables. If we fail to reject the null hypothesis, our conclusion would be the two variables are independent, or there is no association between the two variable. That's it. अच्छा जी। Yes sir. तो अभी आप थोड़ा सा ये इसको देख लीजिए लेक्चर को। Object of the lecture: standard error of proportion, indicate the kinds of data that call for chi-square test hypothesis testing, role of degree of freedom in chi-square statistic, and to find the critical region. Standard error of proportion. Standard error of proportion ये हम estimation में कर चुके हैं कि standard error of proportion या standard error जब हम estimation में एक formula p into 1 minus p upon n under the root वाला हम इस्तेमाल करते थे estimation में, ये वही है। ये आपको उस एक तमहीद बांध रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कि आपको chi square टेस्ट की तरफ जो है ना वो लेके जाएं कि इसके बाद जो वेरिएबल हमारे पास आते हैं इस पे हम कौन सा वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो एट द एंड वी विल अप्लाई chi square टेस्ट। ये सिर्फ वो प्रिपेयर कर रहे हैं आपको मेंटली, एक इंट्रोडक्शन बांध रहे हैं। Suppose in Peshawar a survey is done of 80 shopkeeper and it was found that the shopkeeper with carries 20, with no carries shopkeeper 60. Mean, what conclusion can be drawn from the sample? What possible range of carries shopkeeper would have expect in the population with 95% confidence interval? 95% confidence interval के साथ हम क्या करते थे? Estimation करते थे ना। ये calculation for standard error proportion
proportion of shopkeeper with carries 20 upon 80, total 80 थे, 20 को dental carries थे, 25% ये बनता है. Standard error of proportion P into 1 minus P, ये जो है P into Q, Q बराबर है 1 minus P का, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये हम कर चुके हैं. अगर आपको याद है P into 1 minus P या ये बराबर है P into Q, इसके भी बराबर है, और अपॉन n ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है. ये हम कर चुके हैं, पिछले एस्टिमेशन में हम कर चुके हैं, लेकिन आपको याद ताज़ा कर रहे हैं. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोपोर्शन, तो आपके पास P जो है 25 है और 1 माइनस P ये 75 के बराबर है. 25 तो ये 5 आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन है, यानी जहां पे S अपॉन n अंडर द रूट है वहां पर ये P इंटू 1 माइनस अपॉन n अंडर द रूट, तो ये 5 के बराबर है. तो फॉर्मूला एस्टिमेशन का क्या है? P प्लस माइनस Z अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन, ये स्टैंडर्ड एरर है. तो वी टेक 1.96 for 95% confidence interval, standard error on both sides of 25 plus minus 1.96 into standard error 5 है. ठीक है जी. तो ये हमारे पास कितना है? 15 to 35. यानी जो सैंपल हमने 80 का लिया है उसमें से जो हम पैरामीटर, जो एक्चुअल प्रोपोर्शन पाई हम एस्टिमेट कर रहे हैं विद इन शॉपकीपर तो बहुत ज्यादा होंगे, हमने सिर्फ 80 का सैंपल लिया, तो ये 15 से लेकर 35% के दरमियान जो है वो फॉल कर रहा है एक्चुअल प्रेवलेंस ऑफ डेंटल कैरीज, एक्चुअल प्रेवलेंस ऑफ dental caries. So proportion of caries in shopkeeper of the general population could vary from 15 to 35%. Yes, sir. You narrow this confidence. Narrow confidence interval हम कैसे करते हैं? हमने कहा कि सैंपल साइज को बढ़ा दीजिए, स्टैंडर्ड एरर को कम कर दीजिए, और आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम कर दीजिए. तो आप इसको कम कर सकते हैं, सैंपल साइज को कम करने, स्टैंडर्ड एरर को बढ़ाने से आप इसको बढ़ा सकते हैं, ये इंटरवल जो है. अच्छा, now increase the sample size to 160, proportion shopkeeper carries 25%, standard error proportion 3.36 आया. अब इसका जो आया वो मेरे पास आया 18 to 31. पहले 15 to 35 था, अब नैरो होके 18 to 31 आया. यानी पहले वाले में 20 का डिफरेंस था और अब वाला डिफरेंस जो रेंज बीच में आया वो कितना है? वो 13 के बराबर है. 18 से लेकर 31 तक 13 है ना, तो ये कम हुआ. किस चीज की वजह से कम हुआ? ये सैंपल साइज बढ़ाने की वजह से कम हुआ, सैंपल साइज बढ़ाने की वजह से कम हुआ. अच्छा, ये फिर जो है ना टेबल है, काई स्क्वायर टेबल है. अच्छा सर, ये आपकी आवाज कट रही है. अभी भी कट रही है? जी सर. सर मुझे समझ नहीं आ रही है अभी भी. अच्छा, अब आप इधर देखें, स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल, नॉमिनल स्केल, मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन, काई स्क्वायर, ऑर्डिनल स्केल पे हम स्पेयरमैन रो अप्लाई करते हैं. कोरिलेशन हम कर चुके हैं. अगर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है तो फिर हम स्पेयरमैन रो जो है दोनों तरफ पे, अगर ऑर्डिनल डेटा है, पैटर्न एक पाया जाता है, स्पेयरमैन रो पर अप्लाई करते हैं. Chi-square and frequency data. Up to this point, the inference to the population has been concerned with score on one or more variables, such as CATE score, mathematics achievement, age, weight, and hours spent on the computer continuous variable. We use these scores to make the inferences about population mean. Not all research questions involve score data. ये कहते हैं कि continuous data हमेशा नहीं होता, कभी कभार हमारे पास categorical variable भी आ जाते हैं. So today the data that we analyze consists of frequency, that is the number of individuals falling into a category. In other words, the variables are measured on a nominal scale. The test statistic for frequency data is Pearson chi-square. The magnitude of Pearson chi-square reflects the amount of discrepancy between observed frequency and expected frequency. Expected frequency अभी हम मालूम करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें. Steps and test of hypothesis. Determine the appropriate test. Formulate the statistical hypothesis, you are null and alternate. Establish the level of significance alpha, calculate the test statistic, and determine the degree of freedom. Compare calculated test statistic against tabulated critical way and make conclusion. Step 1, determine appropriate test. Chi-square test is used when both variables are measured on a nominal scale. It can be applied to interval ratio data that have been categorized into a small number of groups.
it assumed that the observations are randomly sampled from the population. All observations are independent and individual can appear only once in a table and there are no overlapping categories. Overlapping categories का मतलब है कि एक सेल का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, independent है. Establishment of significance alpha is predetermined value. It is decided at the time of sample size calculation. The convention alpha 0.05, 0.01, 0.00. Determine the hypothesis whether there is an association or not. The two variables are independent. The two variables are associated, or the two variables are not independent. When there is an association, so null hypothesis कहेगा the two variables are independent, mean there is no association between the two, or alternate कहेगा कि they are dependent, mean there is an association between the two. Step 4, calculating test statistic, contrast observed frequencies in each cell of a contingency table with expected frequencies. The expected frequency represents the number of cases that would be found in each cell if the null hypothesis were true. That is, the nominal variables are unrelated. ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है. Expected frequency of two unrelated event is product of the row and column frequency divided by the total number of cases. ये फार्मूला है जो मैंने आपको बता दिया. आगे हम करते हैं. ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम कैलकुलेट करते हैं. पहले मैं कर दूं आपको कि ये कैसे करते हैं. एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. ये वैसे कहानी लंबी चौड़ी है लेकिन मकसद जो है ना बहुत मुख्तसर है. ये सपोज मेरे पास टेबल है. ये हम स्मोकिंग कर देते हैं यस, यस और यहाँ पर नो. और यहाँ पर जो है ना वो डिजीज है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव. आसान उसमें मैं समझा देता हूँ. यहाँ पर ये भी टोटल है और ये भी टोटल है. इसको जो इस तरफ जा रहे हैं इसको हम रो कहते हैं, रो, यानी ये R1 होगा. और ये वाला जो है ये भी रो है, रो 2 है. इसी तरह ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं ये कॉलम है तो ये कॉलम 1 है और ये वाला भी कॉलम है, ये कॉलम 2 है. ये वाला टोटल का है. इस पे और इस पे हम नहीं जाते. ये A, B, C और D, ये दो 2x2 टेबल है. अब मैं सपोज स्मोकिंग यस जो है 100 में से 60, स्मोकिंग यस, स्मोकिंग नो, डिजीज प्लस डिजीज नेगेटिव. जो स्मोकिंग करते हैं उनको 60 लोगों को डिजीज डेवलप हुई 100 में और 40 को नहीं हुई. टोटल ये 100 है. इसी तरह जो स्मोकिंग नहीं करते इनमें 40 को डिजीज डेवलप हुई, 80 को नहीं हुई और टोटल जो है वो 120 है. ये टोटल जो है ये 220 है जिसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड टोटल. और ये वाला 100 है, ग्रैंड टोटल. हाँ, ये 120 है. मतलब इस तरफ से भी एक 220 आएंगे और इस तरफ से भी 220, तो इसको हम ग्रैंड टोटल कहते हैं. ठीक है जी. ये वाला टोटल जो है ये रो टोटल कहते हैं, R1 टोटल. और ये वाला R2 टोटल कहते हैं. ये वाला कॉलम 1 टोटल कहते हैं और ये वाला कॉलम 2 टोटल कहते हैं. ये जो है, ये जो आपको नजर आए, हम टोटल से जो है ना थोड़ा काम चलाएंगे. जो टोटल हमारे पास है वही. सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कौन सी है जो आपको टेबल में नजर आ रही है? A, B, C और D. A कितना है? 60 है. हाँ, B 40 है. यस सर. 40 है और ये 80 है. ठीक है जी. हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी माना कॉलम टोटल, कॉलम 1 टोटल, यानी कॉलम टोटल इनटू रो टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. तो सेल ए की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब ये देखना होगा कि ये कौन से रो में फॉल कर रहे हैं, कौन से कॉलम में. तो ये पहला वाला रो है और पहला वाला कॉलम है. तो इसका टोटल और इसका टोटल, इससे हम जो है ना, तो पहले वाले कॉलम का टोटल 100, पहले वाले रो का टोटल जो है वो 100 है क्योंकि सेल ए जो है ना इसे में फॉल कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 220.
कितना बना, ये इसके साथ कटा, और ये इसको डिवाइड करे कितना बन जाता है? हाँ जी, 1000 डिवाइडेड बाय 22 यस सर। कितना हुआ? 45.45 5.45। अच्छा जी, ये 1000 divided by 22 is equal to 45.45। यस सर। अच्छा जी, दूसरा वाला ये भी हम कर देते हैं। यस सर। हाँ जी, ये जो है आज डायरेक्टली कर देते हैं। बी कौन से कॉलम में? कॉलम 2 में फॉल कर रहे हैं और रो 1 में का फॉल कर रहे हैं। तो कॉलम 2 का है 120 टोटल, और रो 1 का टोटल जो है वो 100 है, और 100 डिवाइडेड बाय 220। हाँ, तो कितना बना? ये 0 0 के साथ कटा, और ये दोबारा 100 मल्टीप्लाई बाय 120 10 ये 54.54 आता है ये। यस सर 54.54। ये वाला सेल सी कॉलम 1 और रो 2 में फॉल कर रहा है। ये रो 2 है ना, और ये कॉलम 1 है। यस सर। 100 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 220। हाँ जी, 1200, और ये दोबारा इससे मेरे ख्याल में सर 54.54 आ रहा है। 0.54। और ये तीसरा जो है इसका टोटल, ये कॉलम 2 रो 2 कॉलम 2 120 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? इससे दोबारा वही 54 आया। कितना आया? नहीं, 12 120। $65.45। फिर फॉर्मूला में क्या है? O माइनस ई, O माइनस ई, ई, O माइनस ई। इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 60 है, माइनस 45.45 कितना बना? 14.55 14.55 जी सर। और ये दूसरा वाला, ये जो है 14 है, 14.55। यस सर। ये वाला कितना बना? 40 माइनस 54.54 कितना बना? ये भी कोई 14 पॉइंट इतना ही बना ना, माइनस सर ये माइनस 14.54 आता है। 54 है। यस 54, सर। अच्छा 54 ये भी 54 ये सर। अच्छा। यस और सर। ये वाला 40 माइनस, ये भी उतना ही आता है, माइनस 14. सर उतना ही आता है सर। अच्छा जी, और ये वाला 80 माइनस 65.45 ये भी उतना ही 14.54 आता है। यस सर। एक जैसे आते हैं।
तो अब Yes, sir. O माइनस ई स्क्वायर आप ले लें। 14.5. हाँ 14.54 सारे हैं, तो इसका स्क्वायर ले ले, कितना हुआ? स्क्वायर ले ले, कितना हुआ? नहीं आया? सर ये तो 211.70 इस तरह सब मिलेगा। 14.54 मल्टीप्लाई बाय 14.54 सर 211.70। 211.41 यस सर 211.41 यस सर। ये इसी तरह ये वाला 211। यस सर। अब जो है O माइनस ई होल स्क्वायर हमारे पास आया, इसको डिवाइड करें ई पे, यानी हर एक अपने अपने ई पे इसको डिवाइड करें। 211.41 इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है पहले वाले की? 45.45। 45.44। हाँ तो 45.45। दूसरे वाली कितनी है? 211.41 डिवाइडेड बाय 54.54। इसी तरह ये वाला 211.41 डिवाइडेड बाय 54.54 और ये वाला जो है 211.41 डिवाइडेड बाय 65.45। ठीक है जी। अच्छा ये इसको डिवाइड करके बता दें कितना हुआ पहला वाला 211। सर पहला सर 4.65। एक मिनट 211.41 डिवाइडेड बाय 45.45 इज इक्वल टू 4.65। यस सर। और दाया ये वाला कितना बना? 211.41 54.54 ये 3.88। यस सर 3.88। ये वाला सर ये भी उतना ही है सर। और ये चौथा वाला 211.41 डिवाइडेड बाय 65.45 ये 3.23। 3.23 जी सर 3.23। इसका
टोटल कितना हुआ, सिग्मा ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, यानी इन सबको हमने ये वाला जो है इसको प्लस करने का सिग्मा बनेगा। तो ये टोटल कितना हुआ 4.65 सर 15.64 प्लस प्लस 3.23 15.64। यस सर। ये हमारे पास क्या आया, कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या आया, टेस्ट स्टैटिस्टिक। कैलकुलेटेड हम टेस्ट स्टैटिस्टिक भी कहते हैं या कैलकुलेटेड वैल्यू भी कहते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेबुलेटेड वैल्यू हम मालूम करते हैं। अब आप देखें, टेबुलेटेड वैल्यू, इसको तो खैर आप खुद ही कर लेंगे, इसमें मसला नहीं है। टेबल मेरे पास आ जाए। अच्छा, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कॉलम -1 इंटू रो -1। टोटल कॉलम कितने हैं और टोटल रो कितने हैं उससे एक माइनस कर दें, तो मेरे पास टोटल कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। यस ठीक सर। है ना, यहाँ पर सिर्फ 2 हैं और जी ये 1, तो ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 1 है। अब आप आ जाएं, यस सर। टेबल पे आ जाएं। ये टेबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका है 1 और ये 1 टेल हाइपोथेसिस है। ये भी आपको बता दूं कि काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा अपर टेल 1 टेल होता है कि उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 0.05 3.84 टेबुलेटेड है। इधर देखें 3.84 है, यस सर। 3.84 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और आपका कैलकुलेटेड कितना है, वो कोई 15 है, कोई यस सर 15 है। 15। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप इसको ये कर लें तो आपका ये 3.84 है और कैलकुलेटेड कहीं बहुत दूर 15 पे आ रहा है, 15 समथिंग। Yes, So sir. as the calculated value is more than the tabulated and it falls in the rejection region, so we reject the null hypothesis in favor of alternate hypothesis, and we have sufficient evidence to conclude that smoking is associated with development of disease. And there is an association between smoking and the disease. They are dependent, they are not independent. Mean these two variables are dependent. There is an association. There is an association between these two categorical variables. ठीक है जी? Yes, sir. अच्छा जी, अब आप इस पे आ जाएं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपेयर टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मैं आपको formulate the hypothesis there is no difference between party A and party B, ये उन्होंने कोई ये टेबल लिखा हुआ है कि पार्टी ए पार्टी बी 2 सियासी पार्टियां हैं, फेवर न्यूट्रल एंड अपोज, और उनका ये ओपिनियन जाना गया है कि आया उनके ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टी और उनके ओपिनियन में कोई एसोसिएशन है या नहीं है। तो कोई गन शॉट, जो गन शॉट हैं उसके फेवर में जा रहे हैं, कोई अपोज में जा रहे हैं और कोई न्यूट्रल है कि ना अपोज कर रहे हैं ना जो है सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये टेबल है, सेम वही टेबल है, ये 3/2 टेबल है और वो 2/2 टेबल था। तो यहाँ पर आपके कॉलम 3 बनेंगे और रो जो है वो 2 है। ये टोटल को हम नहीं गिनते, टोटल को सिर्फ कैलकुलेशन में गिनते हैं। बाकी सेल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 जो है ना हमारे पास सेल, सॉरी 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ, एफ जो है ना वो सेल्स है। आगे देखिए इसी तरह कैलकुलेट किया गया है जैसे मैंने कैलकुलेट किया है।
party membership 2 levels and nominal, voting preferences 3 levels and nominal. Established level of significance 5%. There is no difference between party A and party B in their opinion on gun control issue, and there is an association between responses to the gun control survey and the party membership in the population. ये फिर उनके डायरेक्ट जो हैं, अगर आप ये सेल ए हैं, इसका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड है वो कॉलम टोटल, रो टोटल, ये आपका रो टोटल है, ये कॉलम टोटल है और ये ग्रैंड टोटल है। नजर आ रहा है आपको? इसको डिवाइड किया गया और इससे 13.9 है। बाकी सबका इसी तरीके से किया गया है, जो जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसका टोटल के मल्टीप्लिकेशन और ग्रैंड टोटल पे डिवीजन है। ये देखें, फिर आगे इन सब की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 ये मालूम की गई है। ये वाला फिर आपका इधर देखें तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी O माइनस ई होल स्क्वायर और O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो ये आए, ये 11.09 आपके पास क्या है, सिग्मा O माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। जिस तरीके से हमने किया उस तरीके से उन्होंने ये किया हुआ है। तो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू 11.01 है। डिटरमिन डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां पर आपके पास रो कितने हैं, रो आपके पास 2 हैं। इधर देखें, रो 2 है ना, इसको जान लीजिए जी। ये रो 1 है, ये रो 2 है, लेकिन कॉलम आपके पास 3 है। कॉलम कितने हैं, 3 है। हाँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका यहाँ पे रादर देन 1 2 हो जाएगा। रो 2 माइनस 1 और कॉलम 3 माइनस 1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास अल्फा और ये 2 है, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये 5.99 है। कितना है, 5.99 और आपका कैलकुलेटेड कितना है, 11.02। So as the calculated value is more than the tabulated 5.9 and it falls in the rejection region, so we reject the null hypothesis and we have sufficient evidence to conclude that there is an association between the political party membership and their opinion on gun control issue. There is an association. ठीक है जी? Yes sir. जी sir. Compare computer test statistic, degree of freedom 2, critical value, test statistic exceed the critical value, null hypothesis is rejected, party A and party B differ significantly in their opinions on gun control issue. ये जो है ये आपका क्या कहते हैं, SPSS आउटकम है। ये क्या है, SPSS आउटकम है। SPSS आउटकम, जी जी। एंड ये होमवर्क एंड दैट इज द एंड ऑफ chi-square टेस्ट। ठीक है जी? जी सर।